الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہلاں کے غیرت مند صحابہ اکرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے جو محترم جناب اشرف حسینی صاحب نے آپ کو مبارکباد دی ہے، اس پر دو چار باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میری طرف سے بھی تمام پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ ناموس صحابہ و ناموس اہل بیت بل پاس ہو گیا، اور اس میں دیکھیں یہ بل جو ہے، اس بل سے ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بل ہمارے خلاف ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ غور سے ذرا پڑھو، اس بل میں کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ بل کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، کسی طبقے کے خلاف نہیں ہے، یہ بل صرف اور صرف گستاخوں کے خلاف ہے۔ وہ گستاخی جو بھی کرے گا، جس بھی مذہب سے ہوگا، بل میں یہ تو نہیں لکھا کہ اگر فلاں فرقے کا آدمی گستاخی کرے گا تو اس کو سزا لگے گی، اگر فلاں فرقے کا آدمی گستاخی کرے گا تو اس کو سزا نہیں لگے گی۔ ایسی کوئی بات بل میں ہے؟ بل تو کسی فرقے کے خلاف ہے ہی نہیں، کسی مذہب، کسی طبقے، کسی گروہ کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ سمجھا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ بل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے گا، یہ بل صرف اور صرف گستاخوں کے خلاف ہے۔ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور الحمدللہ یہ بل آج اس دور میں پاس ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ملک پاکستان کا قیام ہوا تھا، پہلے دن سے یہ بل پاس ہوتا، تاکہ ملک میں افراتفری جو ہو چکی ہے یہ بھی نہ ہوتی۔ بھائی گستاخوں کے خلاف ہے، آپ تحقیق کریں۔ آپ کو جو ابھار رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے روڈوں پہ نکلو،
एहतजाज करो, आवाज बुलंद करो, उनको कहो जरा पढ़ो तो सही, बिल आपने पढ़ा नहीं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं। सही कह रहा हूं? किसी तबके के खिलाफ नहीं है, किसी फिरके के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपने मजहब को छोड़ो, अपने मजहब की इबादत नहीं करो। हाँ, कौन सा मजहब सही कौन सा गलत, मैं इस पे बात नहीं करता, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उन सेनेटर हजरात को और MNA हजरात को और उन तमाम सियासी समाजी मजहबी जमातों के लीडरान को जिन्होंने शबो रोज मेहनत करके और इस बिल को पास करवाया। मैं समझता हूं इन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ हमदर्दी और उसकी मजबूती और उसके इस्तेकाम में उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क जो है माजी से बनिस्बत मुस्तकबिल में ज्यादा मजबूत होगा और पुरअमन होगा। ये बात सही है। हाँ, गुस्ताखी जो करेगा उसको परेशान भी होना चाहिए, चीखना भी चाहिए, चिल्लाना भी चाहिए, और जो गुस्ताखी नहीं करेगा उसको परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये बिल जो है इसका हम खैर मकदम करते हैं और इसको हम कबूल करते हैं और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क अमन का गहवारा होगा। देखें, एक मुल्क है, एक ही मुल्क है, इस मुल्क के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक को चाहने वाले भी लाखों और करोड़ों की तादाद में अफराद इस मुल्क में मौजूद हैं। हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को चाहने वाले भी लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इस मुल्क में रहते हैं। अब अगर इस मुल्क के अंदर हजरत अबू बकर को हजरत अली का दुश्मन बताया जाएगा, ये तो लाखों को लाखों से लड़ाने की साजिश है, ये तो मुल्क को कमजोर करेगी। हम तो प्यार वाली बात करते हैं, हम तो कहते हैं हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा भी हमारे ईमान का हिस्सा है, अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। जो आदमी सहाबा को मानता हो, अहले बैत को ना मानता हो, वो अपना ईमान मुकम्मल नहीं कर सकता, और जो अहले बैत को मानता हो, सहाबा को ना मानता हो, वो भी अपना ईमान मुकम्मल नहीं कर सकता। जिस तरह परिंदे को उड़ने के लिए दो परों की जरूरत होती है, एक पर के साथ कोई परिंदा उड़ नहीं सकता, इसी तरह हमारे ईमान को भी दो परों की जरूरत है। एक पर मोहब्बत सहाबा और दूसरा पर मोहब्बत अहले बैत है। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। हम जहां अपने बेटे पर नाम अबू बकर रखते हैं वहां अली भी रखते हैं। हम अपने बच्चों पर जहां नाम उमर रखते हैं वहां हसन भी रखते हैं। हम जहां अपने बच्चों पर नाम उस्मान रखते हैं वहां हुसैन भी रखते हैं। हम जहां अपनी बच्चियों पे नाम आयशा रखते हैं वहां फातिमा भी रखते हैं। हमारी मस्जिदों को देखिए, ये सिद्दीक अकबर मस्जिद है तो ये अलीउल मुर्तजा मस्जिद है, ये आयशा मस्जिद है तो ये फातिमा मस्जिद है। हमारे मदारिस को देखिए, ये सिद्दीक जामिया सिद्दीक अकबर है तो ये जामिया हैदरिया है। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। सहाबा भी ईमान का हिस्सा है, अहले बैत भी ईमान का हिस्सा है। बड़ी बात यह है, सहाबा अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत सहाबा को मानते हैं। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। और बड़ी बात यह है, सहाबा अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत सहाबा को मानते हैं। जरा मैं एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूं। 17 हिजरी को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिश्ता मांगा, बेटी का रिश्ता मांगा, हजरत उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा का रिश्ता मांगा। बज़ाहिर देखा जाए 17 हिजरी में हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र भी बहुत सारी थी, बीवियां भी और हैं, बज़ाहिर शादी की जरूरत नहीं थी, लेकिन हजरत उमर हजरत अली से रिश्ता मांग रहे हैं, साथ में नबी का फरमान भी सुना रहे हैं। समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु कुल्लु नसबिन व सबबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामत इल्ला सबबी व नसबी। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने नबी से सुना है
कयामत का दिन होगा, तमाम रिश्तेदारियां मुनक़ते हो जाएंगी, मगर मैं मोहम्मद के साथ जिसकी रिश्तेदारी होगी वो बच जाएगी। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं ये चाहता हूं नबी के खानदान की औरत मेरे निकाह में भी होनी चाहिए, ताकि कल कयामत का दिन हो जहां बाकियों के रिश्ते टूट जाएं, वहां में उमर का रिश्ता जिस तरह दुनिया में नबी के साथ जुड़ा हुआ है, कल कयामत के दिन भी नबी के साथ जुड़ा रहे। हजरत उमर ने यह रिश्ता मांगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसको बयान करते हुए यह फरमाया, हजरत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी हजरत उमर से कराई। ये कितनी मोहब्बत की बात है कि अली के बच्चों का नाना नबी है, उमर के बच्चों का नाना अली है। ये कितनी मोहब्बत की बात है। अली की बेटी उमर के घर है, उमर की बेटी नबी के घर है, नबी की बेटी अली के घर है। ये तो घराना ही एक है। हजरत अलीउल मुर्तदा हजरत उमर के ससुर हैं, नबी अली के ससुर हैं, उमर नबी के ससुर हैं। हजरत उमर अली के दामाद हैं, नबी उमर के दामाद हैं, अली नबी के दामाद हैं। हम तो दो नहीं मानते, ये घर ही एक है। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे। हम तो प्यार की बात करते हैं। ये रिश्ता क्या बताता है कि प्यार था या नहीं था? बोलो भाई, प्यार था या नहीं था? आगे चलिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ मोहब्बत नहीं है, बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत है कि इराक के कुछ लोग हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास आए एक मसला पूछने। हजरत उमर का बेटा है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उसके पास कुछ लोग इराक से आए, मसला पूछने आए कि हजरत मसला तो बताइए, हालत एहराम में मच्छर मारना कैसा है? हालत एहराम में मच्छर मारना कैसा है? ये पूछने वाले इराक के लोग थे। जिनसे मसला पूछा जा रहा था वो हजरत उमर के बेटे हैं। हजरत उमर के बेटे ने बड़ा अजीब जवाब देते हुए फरमाया, इराक के लोग भी बड़े अजीब हैं, नबी के नवासे को तो उन्होंने शहीद कर दिया और मच्छरों के मसले पूछते हैं और उन नवासे को शहीद कर दिया जिनके बारे में इमामुल अंबिया ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानताय मिनद दुनिया। हसन और हुसैन दुनिया की दो खुशबुएं हैं। अब देखें, शान हजरत हुसैन की है, बयान करने वाले हजरत उमर के बेटे हैं। शान हजरत हसन की है, बयान करने वाले हजरत उमर के बेटे हैं। ये मंजर बताता है कि सहाबा को अहले बैत से प्यार है, अहले बैत को सहाबा से प्यार है। यह रिवायत भी बताती है कि इनका आपस में प्यार है। कुरान भी कहता है रामाउ बैनहुम, इनका आपस में प्यार है। नफरत की बातें यहूदियों की हैं, प्यार की बातें कुरान की हैं। हम आज नफरत की नहीं, आज हम प्यार की बातें करेंगे। आज हम बात प्यार की करेंगे। सहाबा और अहले बैत के माबैन नफरत की बातें चलाई हुई है यहूदियों की, प्यार की बातें आज हम करेंगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं, सहाबियत का रुतबा उन्हें मिला है। हजरत हुसैन सहाबी हैं, हजरत हुसैन अहले बैत में से हैं। हजरत हुसैन नबी के रिश्तेदार भी हैं, आले रसूल भी हैं, अहले बैत भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं। हजरत हुसैन को जितनी फजीलतें मिली हैं उनमें से एक फजीलत ऐसी मिली है जो लाजवाब मिली है। वो फजीलत कौन सी है कि हजरत हुसैन सहाबी हैं। सहाबी होने के नाते हजरत हुसैन का इतना मकाम ऊंचा हो गया है, इतना मकाम बुलंद हो गया है। अगर अल्लाह ताला इस दुनिया में ऐसा इंसान पैदा करे जिसको लाखों करोड़ों साल जिंदगी अता करे, वो पैदा होते ही इबादत करता रहे, पैदा होते ही जिहाद करता रहे, नमाजें पढ़ता रहे, तहज्जुद पढ़ता रहे, जिहाद करता रहे, सजदे करता रहे, रुकू करता रहे, नवाफिल पढ़ता रहे, हज करता रहे, उम्रे करता रहे, खैरात करता रहे, ज़कात देता रहे, रियाजत करता रहे, इबादत करता रहे,
तस्बीहात पढ़ता रहे, ये लाखों करोड़ों साल इबादतें करके, नमाजें पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, तिलावतें करके, तवाफ करके, हज करके वली बन सकता है, गौस बन सकता है, कुतुब बन सकता है, अब्दाल बन सकता है, लेकिन मेरे हुसैन की अजमत का मुकाबला कर सकता? हम तो हुसैन को यूं मानते हैं, हुसैन हुसैन हैं, हजरत हुसैन सहाबी हैं, और सहाबी होने की वजह से आज वली मिलकर भी हजरत हुसैन की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत हुसैन सहाबी भी हैं और नवासे पैगंबर भी हैं। हजरत हुसैन नवासे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन के नाना हैं। अगर नबी नाना है तो हजरत आयशा हजरत हुसैन की नानी है। हम तो हुसैन को भी मानते हैं, हुसैन के नाने को भी मानते हैं, हुसैन की नानी को भी मानते हैं, हुसैन की नानी को भी मानते हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत सहाबा से और सहाबा की मोहब्बत हजरत हुसैन से आगे चलिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफा हजरत हुसैन से फरमाया कि कभी मेरे पास आ जाएं, जिस तरह हम एक दूसरे को मोहब्बत में दावत दिया करते हैं कि हजरत कभी हमारे पास चाय पी लें। हजरत गोया के हजरत उमर ने हजरत हुसैन को यूं ही दावत दी थी कि कभी मेरे पास आ जाएं। एक दफा ऐसा हुआ, हजरत हुसैन हजरत उमर से मुलाकात के लिए वहां पहुंचे। दरवाजे पर हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर मौजूद थे। हजरत हुसैन जब वहां पहुंचे, अब्दुल्ला बिन उमर ने बताया मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। हजरत हुसैन सोचने लगे जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है मुझे कैसे होगी। हजरत हुसैन वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर से मुलाकात हुई। हजरत उमर ने पूछा हुसैन आप मेरे पास आए क्यों नहीं। हजरत हुसैन ने पूरा वाकया बताया, मैं आया था लेकिन आपके बेटे को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मैंने सोचा जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है मुझे कैसे होगी। हजरत हुसैन ने जब ये बात बताई, हजरत उमर ने जो जवाब दिया तारीख के वर्कों में आज भी मौजूद है, सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल है। हजरत उमर ने फरमाया अंत इंदी मिसलहू, क्या तेरा मकाम मेरे नजदीक मेरे बेटे जितना है। इसका मतलब ये है मैं अपने बेटे के लिए दरवाजा बंद करूं ये हो सकता है, लेकिन आपके लिए दरवाजे हमारे खुले रहेंगे। ये मोहब्बत है या नहीं। हम तो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा यानी कपड़े तकसीम कर रहे थे, माले गनीमत में कपड़े आए। हजरत उमर फारूक कपड़े तकसीम कर रहे हैं। तकसीम करते करते आगे से हजरत हसन हजरत हुसैन आ गए। हजरत उमर ने कपड़ों को देखा, शहजादों के चेहरों को देखा, आखिर में एक कासिद को भेजा, जाओ यमन की तरफ आला किस्म की पोशाकें तैयार करके लाओ, इन शहजादों को पहनाना चाहता हूं। फौरी तौर पर एक कासिद यमन पहुंचा, वहां पहुंचकर आला किस्म की पोशाकें तैयार करके हजरत उमर तक पहुंचाई। हजरत उमर ने एक पोशाक हजरत हसन को पहनाई, एक पोशाक हजरत हुसैन को पहनाकर हजरत उमर ने फरमाया अल आन ताबत नफसी, के आज मेरा दिल खुश हो चुका है। हजरत हुसैन को हजरत हसन को अच्छी पोशाक में देखकर हजरत उमर खुश हो रहे हैं। यही तो है सहाबा को अहले बैत से प्यार है, अहले बैत को सहाबा से प्यार है। आज बात मोहब्बत की होगी, आज बात मोहब्बत की होगी। सहाबा को अहले बैत से मोहब्बत है, अहले बैत को सहाबा से मोहब्बत है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में माले गनीमत में एक शहजादी कैद होकर आई। ये हमारी किताबों की बात नहीं है, ये उनकी किताबों की बात है, लेकिन बात मोहब्बत की है, इसीलिए मैं करना चाहता हूं। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में माले गनीमत में एक शहजादी
कैद होकर आई, माले गनीमत में आई। वो शहजादी इतनी हसीनो जमील थी, जब वो मदीने के अंदर आई तो मदीने की औरतें उसके हुस्न को देखने के लिए छतों पर चढ़कर आई। अब मसला ये था, ये शहजादी किसको दी जाए? खिलाफत हजरत उमर की है, महफिल हजरत उमर की है, लेकिन हजरत अली ने मशवरा दिया, या अमीर अल मोमिनीन, इस शहजादी को इख्तियार दीजिए, ये जिस पर हाथ रखे उसके साथ निकाह कर दीजिए। मशवरा किसने दिया? अली वाले बोले, सारे नहीं, जो अली वाले हैं वो बोले, आवाज आनी चाहिए भाई। जो अली वाले हैं वो जोर से बोले। मशवरा किसने दिया? किसको दिया? किसने दिया? किसको दिया? कोई बात समझ आ रही है कि मशवरा किसने दिया? किसको दिया? उमर को। पता चला कि मशवरा तो वो देता है जो पास बैठने वाला हो, महफिल में बैठने वाला हो। ये महफिल उमर की है, अली तो उमर की महफिल में बैठे हैं, तुम कहां जा रहे हो? फाइन तज़हबून। अली तो उमर की महफिल में बैठे हैं, और ये बात प्यार की है, इसलिए मैं करना जरूरी समझता हूं। अच्छा, मशवरा अपनों को दिया जाता है और अपनों से लिया जाता है, ऐसे ही है ना? मशवरा अपनों को दिया जाता है, अपनों से लिया जाता है। हजरत अली मशवरा दे रहे हैं, हजरत उमर मशवरा ले रहे हैं, सुन रहे हैं। पता चला कि हजरत अली उमर के अपने हैं, उमर अली के अपने हैं। हम तो अली को भी मानते हैं, उमर को भी मानते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हजरत अली ने मशवरा दिया कि इस शहजादी को इख्तियार दीजिए, ये जिसके सर पर हाथ रखे उसके साथ निकाह कर दीजिए। हजरत अली ने मशवरा दिया, हजरत उमर ने अली के मशवरे पे फैसला दिया। उस शहजादी से कहा, जिसके सर पर हाथ रखोगी उसके साथ आपका निकाह होगा। हजरत उमर ने जब ये फैसला दिया, वो शहजादी आई, जाअत फवज़अत यदहा। उस शहजादी ने जिस जवान के सर पर हाथ रखा उसका नाम इंशाल्लाह फिर कभी बता दूंगा, क्योंकि आप थके हुए हैं, बहुत वक्त हो गया है। ऐसा ना हो कि बात आपको याद न रहे, मोहब्बत की बात हो और फिर भूल जाएं, इसलिए मैं इंशाल्लाह फिर कभी बता दूंगा। अभी बता दूं तो अभी सुभान अल्लाह सुनाइए, और जोर से, और जोर से। हजरत अली ने मशवरा दिया, हजरत उमर ने फैसला किया। हजरत उमर ने फैसला किया, शहजादी से कहा, जिसके सर पर हाथ रखोगी उसके साथ आपका निकाह होगा। जाअत फवज़अत यदहा अला रासिल हुसैन। उस शहजादी ने जिसके सर पर हाथ रखा उसका नाम हुसैन है। पता चला कि उमर की महफिल में अली अकेले नहीं, अली हुसैन समेत बैठे। महफिल एक ही है, उसमें उमर भी हैं, अली भी हैं, हुसैन भी हैं। तो बात ये नफरत की है या मोहब्बत की? और मोहब्बत की बात करने से मुल्क में अमन होगा, और इसीलिए हम यही समझाना चाहते हैं, हमारा मुल्क इख्तिलाफी बातों का मुतहम्मिल नहीं है। प्यार की बातें करो ताकि मुल्क में अमन की फिजा कायम हो जाए। आओ आज हम प्यार की बातें करके अमन को मजबूत करना चाहते हैं। ये महफिल उमर की है, अली भी बैठे हैं, हुसैन भी बैठे हैं। पता चला आपस में कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, हजरत हुसैन के सर पर उस शहजादी ने हाथ रखा, हजरत उमर ने वो शहजादी हजरत हुसैन को दे दी। हजरत उमर दे रहे हैं, हजरत हुसैन ले रहे हैं। हजरत उमर दे रहे हैं, हजरत हुसैन ले रहे हैं। तवज्जो रहे, हजरत उमर दे रहे हैं, वो शहजादी हजरत हुसैन ले रहे हैं। बात कोई समझ आ रही है? हजरत उमर दे रहे हैं, हजरत हुसैन ले रहे हैं। भाई अगर कोई किसी से नाराज हो, उसको पानी का गिलास दे दो, वो वापस कर देगा। चाय का कप दे दो, वापस करेगा, मैं नहीं लेता, मेरी इससे बात ही नहीं है। नाराज आदमी पानी भी नहीं लेगा, चाय भी नहीं लेगा। लेकिन यहां हजरत उमर दे रहे हैं, हजरत हुसैन ले रहे हैं।
पता चला कि इनके दरमियान नफरत की बातें जो भी फैलाई गई हैं वो सारे की सारी यहूदियों की गलत बातें हैं। सहाबा भी सच्चे हैं, अहले बैत भी सच्चे हैं, कोई नफरत नहीं थी। इनके दरमियान तो प्यार है, मोहब्बत है। हजरत उमर दे रहे हैं, हुसैन ले रहे हैं। फिर हजरत अली ने उस शहजादी से नाम पूछा, मस्मू के, आपका नाम क्या है? शहजादी ने कहा, कालत जहान शाह। बाज रिवायात में शाहजहां आया है, मेरा नाम जहान शाह है। हजरत अली ने फरमाया, बल शहर बानू, बल्कि आज के बाद तेरा नाम शहर बानू है। ये शहर बानू हजरत हुसैन के निकाह में आई और हजरत हुसैन को इस शहजादी से एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम इंशाअल्लाह 4 महीने के बाद बताऊंगा। देखें, आप थके हुए हैं, वक्त भी बहुत हो गया, रात भी हो गई है, मैं भी थका हुआ हूं, आपको नींद भी आ रही है। 4 महीने के बाद बताऊंगा इंशाअल्लाह उस शहजादे का नाम, इंशाअल्लाह 4 महीने के बाद बताऊंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान-ए मोहम्मद मुस्तफा, शान-ए सहाबा, शान-ए अहले बैत, तेरा हुसैन मेरा हुसैन। भाई बात समझ आई कि नहीं है? 4 महीने के बाद बताऊं या अभी बताऊं? अभी माने अभी सुभान अल्लाह बताएं। लेकिन वो नाम ऐसा है, नाम ऐसा है, नाम ऐसा है, नाम आप तक पहुंचे तो आपकी सुभान अल्लाह से पूरी हिल्ला को हिल जाना चाहिए। हजरत उमर ने वो शहजादी हजरत हुसैन को दी, हुसैन ने उससे निकाह किया। हजरत हुसैन को उस शहजादी से एक बेटा पैदा हुआ, उस बेटे का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इस वक्त दुनिया पूरी में जितने भी सैयद आबाद हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अम्मा ये वो हैं जो हजरत उमर ने दी थी हजरत हुसैन को, हजरत उमर ने दी थी हजरत हुसैन को। तभी उलमा ने कहा है सच्चे सैयद की अलामत यह है कि वो हजरत उमर की अजमत को सलाम करता होगा। इसीलिए हम कहते हैं सहाबा भी सच्चे हैं, अहले बैत भी सच्चे हैं। हम प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। ऐसा प्यार है, ऐसा प्यार है। बेटा अली का है, नाम अबू बकर है। बेटा अली का है, नाम उमर है। बेटी अली की है, जोजा उमर की है। बेटा अली का है, नाम उस्मान है। घर उस्मान का है, पैरा हुसैन का है। हम तो प्यार की बात करते हैं, हम तो मोहब्बत की बात करते हैं। हजरत अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हमारे मुक्तदा हैं, रहबर हैं, पेशवा हैं। अल्लाह ताला ने हजरत अली का भी बड़ा मकाम किया है। तमाम सहाबा भी इज्जत वाले हैं, तमाम अहले बैत भी इज्जत वाले हैं। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, के बेशक अल्लाह ताला अपने नबी पे सलात भेजता रहता है। भाई सलात की निस्बत जब अहले ईमान की तरफ हो जाए, इससे मुराद दुरूद पाक होता है। सलात की निस्बत जब फरिश्तों की तरफ हो जाए, इससे मुराद इस्तिगफार होता है। सलात की निस्बत जब अल्लाह की तरफ हो जाए, इससे मुराद रहमत हुआ करती है। तो अल्लाह ताला अपने नबी पे रहमत भेजता रहता है। और ये जुमला इस्मिया है, इसमें जुमले में इस्तिमरारी माना होती है। इस्तिमरारी माना का मतलब ये है, हमेशा वाली माना होती है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ सुबह को रहमत भेजी नहीं, सिर्फ शाम को रहमत भेजी नहीं, सिर्फ रात को रहमत भेजी नहीं, सिर्फ दिन को रहमत भेजी नहीं। नबी बदर में रहमत, बदर में नबी ओहद में रहमत, ओहद में नबी तबूक में रहमत, तबूक में नबी अहजाब में रहमत, अहजाब में नबी अरफात में रहमत, अरफात में नबी मीना में रहमत, मीना में नबी मक्के में रहमत, मक्के में नबी मदीने में रहमत, मदीने में नबी सफर में रहमत, सफर में नबी हजर में रहमत, हजर में नबी हिजरत में रहमत, हिजरत में नबी गार में रहमत, गार में नबी मजार में रहमत, मजार में। जहां जहां अल्लाह के नबी हैं, वहीं वहीं अल्लाह की रहमत
बरसती रहती है तो रहमत बरसती नबी पर है। जो नबी के साथ होंगे हवा उन्हें भी लगेगी। मैंने पंखा चलाया उस्ताद के लिए, लेकिन जो साथ बैठेगा उस्ताद के हवा उसे भी लगेगी। तो अल्लाह ने अपने नबी पे रहमत का पंखा चला दिया है। तो नबी के साथ रहने वाले कौन हैं? और जोर से हाथ बुलंद करके आवाज आनी चाहिए। नबी के साथ रहने वाले कौन हैं? भाई कौन हैं? नबी बदर में है तो साथ कौन है? नबी ओहद में तो साथ कौन है? नबी तबूक में है तो साथ कौन है? नबी मक्के में है तो साथ कौन है? तो अल्लाह ने नबी के ऊपर रहमत का पंखा चला दिया है। कुछ नबी के साथ थे, कुछ अभी तक हैं, तो अल्लाह की रहमत उन पर बरसती रहती है। अबू बकर भी, उमर भी आज भी नबी के साथ हैं, तो अल्लाह की रहमत नबी के ऊपर बरसती है। रहमत की हवा अबू बकर को भी लगती है, उमर को भी लगती है। हजरत अबू बकर भी जन्नत में, हजरत उमर भी। मां बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, नबी का रोजा जन्नत है। और इस रोजे में हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर भी हैं। नबी का रोजा जन्नत है। ये बात तो कन्फर्म है कि नबी का रोजा, आवाज आनी चाहिए, नबी का रोजा, नबी का रोजा जन्नत है, जन्नत है। और हजरत अबू बकर जन्नत में है। ये मुसल्लम कायदा है। हर इंसान उस मिट्टी में दफन होता है जहां से पैदा होता है। अब कैसे पता चले कि फला किस मिट्टी से पैदा हुआ? इंतजार करो जहां इसको दफन किया जाए, समझ लो ये पैदा भी वहीं से हुआ था। इसीलिए आज कोई दफन हो रहा है कराची की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था कराची की मिट्टी से। आज कोई दफन हो रहा है लाहौर की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था लाहौर की मिट्टी में। आज कोई दफन होता है इस्लामाबाद की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था इस्लामाबाद की मिट्टी से। लेकिन अबू बकर उमर दफन हो रहे हैं जन्नत में, पता चला ये पैदा भी हुए थे। क्या मकाम है! पैदा भी जन्नत से हुए, दफन भी जन्नत में हुए, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत में। उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत में। मैं इसीलिए कहा करता हूं हजरत अलीउल मुर्तदा की ताबेदारी करो, सीधे जन्नत चले जाओगे। किसकी ताबेदारी? जिस तरह हजरत अबू बकर की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, जिस तरह हजरत उमर की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, जिस तरह हजरत उस्मान की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, जिस तरह नबी के एक एक सहाबी की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, खुदा की कसम अली की ताबेदारी भी जन्नत पहुंचाएगी। लेकिन हो ताबेदारी, हो ताबेदारी, अली के ताबेदार हो जाओ, सीधे जन्नत चले जाओगे। एक तबका है जो हजरत अबू बकर को बुरा भला कहता है, लेकिन उसी अबू बकर के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे हैं, उसी अबू बकर के पीछे हजरत अली नमाज पढ़ रहे हैं, उसी अबू बकर का नाम हजरत अली अपने बेटे पर रख रहे हैं। अब मुझे बताओ हम इस तबके की माने या अली की माने? बोलो। हम तो यही कहते हैं अली के ताबेदार हो जाओ। सहाबा भी इज्जत वाले हैं, अहले बैत भी इज्जत वाले हैं। हम अली को हक मानते हैं, सच मानते हैं। अली हक हैं, अली सच हैं। हजरत अली जब किसी से बैयत ले रहे हैं, अली उस वक्त भी हक पर हैं, और किसी की बैयत जब कर रहे हैं, अली उस वक्त भी हक पर हैं। हम अली को हक मानते हैं, हर मोड़ पे हक मानते हैं, हर जगह पे हक मानते हैं। मुसल्ले पर खड़े होकर हजरत अली जब नमाजें पढ़ा रहे थे, अली उस वक्त भी हक पर थे, और जब हजरत अली किसी के पीछे नमाजें पढ़ रहे थे, अली उस वक्त भी हक पर है। हम तो प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं कि शादी अली की है,
गवाही अबू बकर उमर की है। ये प्यार की बात है या नहीं? हम तो प्यार की बात करते हैं। शादी अली की है, शादी फातिमा की है, जहेज लेने सिद्दीक अकबर जा रहे हैं। ये तो प्यार है, ये तो मोहब्बत है। भाई मोहब्बत की बातों को आम करो, करोगे नहीं करोगे? मोहब्बत की बातों को आम करो। और सहाबा, कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब देखो ये सारे सहाबा सहाबा करते हैं और अल्लाह रसूल का तज़किरा भी इतना नहीं करते जितना ये सहाबा 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 करते हैं। भाई ये क्या है? बोलो, रुमाल है ना। यहां अगर कुरान भी मौजूद हो और कोई आदमी आए और रुमाल उठाकर भागे तो मैं उसके पीछे क्या कहूंगा कि कुरान, क्या कहूंगा? मेरा रुमाल। स्टेज पर बैठे हुए हजरात वो क्या कहेंगे? मौलवी साहब का रुमाल। आप जो बैठे हैं आप क्या कहेंगे? मौलवी साहब का। अब यहां कुरान भी पड़ा है, मैं भी रुमाल रुमाल कह रहा हूं, स्टेज पर बैठे हुए हजरात भी रुमाल रुमाल कह रहे हैं, आप भी सब रुमाल रुमाल कह रहे हैं। क्या आप और हम सब माअज़ल्लाह रुमाल को कुरान से ऊंचा समझते हैं? नहीं, कुरान की शान ऊंची है, रुमाल रुमाल ज्यादा इसलिए कर रहे हैं कि सामने चोर रुमाल का है। अल्लाह रसूल की शान ऊंची है, सहाबा सहाबा ज्यादा इसलिए करते हैं कि सामने दुश्मन सहाबा का है। हर सहाबी नबी जन्नती सहाबी। बात समझ आई कि नहीं आई? हम सहाबा सहाबा इसलिए करते हैं, अल्लाह रसूल की शान ऊंची है, सहाबा सहाबा इसलिए करते हैं कि सामने दुश्मन सहाबा का है। और अगली बात कहते हैं जी ये अहले बैत की बात नहीं करते, सहाबा की बात करते हैं, अहले बैत की नहीं करते। भाई ये जिला कौन सा है? मंडी बहाउद्दीन। सूबा कौन सा है? पंजाब। कोई एक आदमी ऐसा दिखाओ जो जिला मंडी बहाउद्दीन का तो हो लेकिन सूबा पंजाब का ना हो। कोई एक आदमी, भाई देखो देखो, कोई बूढ़ा शूढ़ा कोई मंडी का हो लेकिन पंजाब का ना हो, कोई है? कोई एक अहले बैत दिखाओ जो अहले बैत तो हो लेकिन सहाबी ना हो, कोई एक दिखाओ। अब जो मैं कहूं सूबा पंजाब वाले जिंदाबाद, अब कोई कहे मौलवी साहब को मंडी वालों से बड़ी नफरत है, पूरे सूबे को जिंदाबाद कह दिया, मंडी वालों की बात ही नहीं की। जाहिल है ना। एक आदमी दिखाओ जो जिला मंडी का हो लेकिन सूबा पंजाब का ना हो। अब जब हम सहाबा सहाबा करते हैं, कोई कहते देखो जी ये सहाबा तो कह रहे हैं अहले बैत की बात नहीं करते, कोई एक आदमी ऐसा दिखाओ जो अहले बैत तो हो लेकिन सहाबी ना हो। नबी की बीवियां अहले बैत हैं या नहीं? क्या फिर वो सहाबियात नहीं है? हजरत अली अहले बैत हैं या नहीं? क्या फिर वो सहाबी नहीं है? हजरत हसनैन करीमैन अहले बैत हैं या नहीं? क्या फिर वो सहाबी नहीं है? हजरत फातिमा अहले बैत हैं या नहीं? क्या फिर वो सहाबी नहीं है, सहाबिया नहीं है? हम जब कहते हैं शाने सहाबा, क्या उम्महातुल मोमिनीन रह गई? क्या हजरत अली रह गए? क्या हजरत हसनैन करीमैन रह गए? क्या हजरत फातिमा रह गई? नहीं, हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। और जब हम लफ्ज़ सहाबा बोलते हैं उसमें अहले बैत भी आ जाते हैं। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, हम प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं। हम तो सहाबा को भी सलाम करते हैं, अहले बैत को भी सलाम करते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम सहाबी हैं, वो अजीम अहले बैत के फर्द हैं कि नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा खुतबा जुम्मा दे रहे थे। हजरत हसन और हजरत हुसैन यूं बचपना है, यूं भागते हुए फिर गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, आ रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपने जुम्मे के खुतबे को छोड़ करके मिंबर से उठे और उठकर आए, अपने दोनों शहजादों को उठाया और गोद में बिठाया और उनकी तारीफ की है।
फजाइल बयान किए हैं। नबी जिनसे प्यार करे, ये कैसे हो सकता है कि नबी का उम्मती भी हो, मोमिन भी हो, वो उनसे प्यार कैसे नहीं कर सकता? हमारे दिलों में हसन की भी मोहब्बत है, हुसैन की भी मोहब्बत है। अच्छा, इसका कोई मतलब ये ना ले कि कल उसका बेटा भी यूं अगर लड़खड़ाता आए तो जुम्मा खुतबा छोड़ के वो फिर उठ को उठाए। ये जायज नहीं है, ये नबी की खुसूसियात में से। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसे लोग मौलवी साहब का बेटा दौड़ता हुआ है, वो भी खुतबे को रोक के उसको उठा ले। भाई ये नबी की खुसूसियात में से है। अब किसी को ये करना जायज नहीं है। उस हुसैन के क्या कहने जो अगर नबी सजदा करें तो उनकी पीठ पर सवार हो जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को लंबा कर दें। हजरत हुसैन के साथ इमामुल अंबिया की इतनी मोहब्बत है कि आप अलैहिस्सलाम ने हजरत हुसैन को घुट्टी आप अलैहिस्सलाम ने दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन का नाम हुसैन अल्लाह के नबी ने रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन के कान में अजान अल्लाह के नबी ने कही है। हजरत हुसैन की इज्जतों और अजमतों में इजाफा हुआ कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा ने हुसैन से मोहब्बत की है। और जिन लोगों ने हजरत हुसैन को बुलाया, धोखा दिया, गद्दारी की, बेवफाई की, हुसैन को शहीद किया, हम उन सब पे लानत करते हैं। तभी तो कहते हैं कातिलाने हुसैन पे लानत, कातिलाने हुसैन पे लानत, कातिलाने हुसैन पे लानत। हम हजरत हुसैन के कातिलों पे लानत भेजते हैं, जिन्होंने हुसैन को बुलाया, जिन्होंने खत लिखे, जिन्होंने वफादारी के वादे किए, लेकिन हुसैन जब पहुंचे इन्होंने गद्दारी की, बेवफाई की, हुसैन से धोखा किया, शहीद किया, जुल्म किया, सितम किया, आले बैत को ज़िबा किया। हम सारे कातिलों पे एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, लाख दफा लानत करना अपना ईमानी फरीदा समझते हैं। हुसैन हुसैन है, सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं, और इंशाअल्लाह हम प्यार की बातें करते रहेंगे। करोगे नहीं करोगे? और इस मुल्क का अमन हमें जान से ज्यादा अजीज है। इस मुल्क में जो बदअमनी करेगा, जो फिरका वारियत फैलाएगा, जो मोहब्बत अहले बैत की आड़ में सहाबा को गालियां देकर मुल्क में बदअमनी का सबब बनेगा, हम उसकी निशानदही करना भी अपना ईमानी फरीजा समझते हैं। ये मुल्क हमारा है, इसकी तामीर, तरक्की, इसका अमन हमें जान से ज्यादा अजीज है। जब तक जान में जान है सहाबा का भी दिफा करेंगे, अहले बैत का भी दिफा करेंगे, पाकिस्तान का भी दिफा करेंगे, और गली गली में आम करेंगे। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? सारे नहीं मानने वाले, सारे नहीं मानने वाले। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी से कुरान सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? आवाज नहीं आ रही, जुर्रत के साथ। हम जब सहाबा सहाबा करते हैं ना, हमारा ईमान ताजा होता है। सब जवाब न दें, जिनका ईमान ताजा हो रहा हो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी से कुरान सीखने वाले कौन? नबी से दीन सीखने वाले कौन? नबी बदर में साथ कौन? नबी उहद में साथ कौन? नबी हुनैन में साथ कौन? नबी अहजाब में साथ कौन? साथ कौन? नबी हिजरत में साथ कौन? नबी गार में साथ कौन? नबी मजार में साथ कौन? नबी कुरान में साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जाननिसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जाननिसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? बोल, जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा,
جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔